بستی والوں کو مار دیا گیا، مگر یہ حسین کا کرم ہے کہ آج تک وہ بنائی ہوئی حسین کی بستی زمین پر بھی زندہ ہے، مومن کے دلوں میں بھی زندہ ہے۔ یہ کہتے ہیں امام حسین کا موقع تہذیب ختم ہو گئی، مگر آج حسین کا موقع یہ ہے وہ تہذیب جو انہوں نے حسین نے دیا تھا کربلا کے بعد 8 دن کی بسائی ہوئی جگہ، آج جگہ پر بھی زندہ ہے یہ موجودہ، اور مومن کے دلوں میں بھی کربلا زندہ ہے، اور آج تک یاد کربلا کو منایا جاتا ہے۔ کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام حسین نے سفینہ نجات بن کر، دیکھیے مسلسل جو اس مجلس یہاں پر حدیث کریمہ رہے گی، کیونکہ ہم دیکھیں میرا موضوع الگ رہے گا، اور میں ممبر پہ زہرا سے معافی مانگتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں، چھوٹا ضرور ہوں مگر چھوٹی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، آپ جیسا ایک مومن ہوں، وہ بھی گنہگار ہوں۔ سب بات محمد ان الحسن سفینۃ النجات ان الحسن مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ترجمہ سے کروں گا، زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گا۔ بے شک حسین جو ہے نجات کا سفینہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ، نجات کا سفینہ۔ نجات کا سفینہ کون تھا؟ دیکھیے ایک جناب نوح اللہ کے نبی گزرے ہیں جنہوں نے سفینہ نجات بنایا تھا، کشتی نجات بنائی تھی جس پر جو لوگ سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، باقی جو نہیں ہوئے تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، آپ سب کو معلوم ہے۔ ایک حسین نے سفینہ نجات بنایا کربلا کے میدان میں، حسین کے سفینے کا نام ہے فرش ازا۔ یہ اسے فرش ازا سمجھ کے مت بیٹھو، یہ فرش سمجھ کے بیٹھو، زمین سمجھ کے نہیں بیٹھو، یہ ہے امام حسین کا بنایا ہوا سفینہ، اس پر جو آ جاتا ہے وہ اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ نوح نے سفینہ بنایا، بس یہی بات کو ختم کرنا ہے، نوح نے سفینہ بنایا، جتنے نوح کے سفینے پر سوار ہو گئے تھے سب کے سب بچ گئے۔ حسین کا سفینہ ہے فرش ازا، جو اس پر آ جائے وہ نجات پا جاتا ہے، مگر نوح کے سفینے کے لیے حسین کے سفینے میں بہت فرق ہے۔ جناب نوح کے سفینے میں حسین کے سفینے میں بہت فرق ہے، چونکہ جناب نوح نے سفینہ بنایا تھا تو اس سفینے کے لیے پانی چاہیے تھا، چلنے کے لیے کشتی کو پانی چاہیے تھا۔ بھئی رتبے میں گر نبی ہے وہی شان چاہیے، رتبے میں گر نبی ہے وہی شان چاہیے، اب نوح کو طوفان کا سامان چاہیے، کشتی ہو بادباں ہو نگہبان چاہیے، کشتی کو تیرنے کو بھی طوفان چاہیے۔ بھئی اگر پانی کو تو نیچے کر جائے گا، کشتی کو تیرنے کو بھی طوفان چاہیے، لیکن یہ معجزہ ہے شہ مشرقین کا، خشکی پہ تیرتا ہے سفینہ حسین کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرے حیدری، آواز بلند، نعرے سلوات۔ ایک سفینہ بنایا جناب نوح نے، جو بھی سوار ہو گیا، نجس تھا تو بھی نجات پا گیا۔ ایک سفینہ بنایا کربلا میں امام حسین نے، جو بھی اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، لیکن جناب نوح کے سفینے میں اور حسین کے سفینے میں فرق ہے۔ جناب نوح کی کشتی میں حسین کی کشتی میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ جناب نوح نے جیسے کو سوار کیا تھا، جب اتارا تو ویسے ہی کو اتارا، گدھے کو سوار کیا تھا تو گدھا ہی اترا، گھوڑے کو سوار کیا تھا تو گھوڑا ہی اترا، بھئی جیسے کو سوار کیا تھا، جیسا انسان سوار کیا تھا ویسا ہی اترا۔ یہ جناب نوح جیسا اولو میں پیغمبر کا سفینہ تھا، جو اس پر جیسا سوار ہوا ویسا ہی اترا، مگر کربلا کے میدان میں حسین نے ایک ایسا سفینہ بنایا، ایک ایسا سانچہ بنایا، سوار کر کر بھیجتے تھے تو انسان ہوتا تھا، جب گھوڑے سے گرتا تھا علیہ السلام بنتا تھا۔ صلوات محمد والے بھائی نوح نے جس کو سوار کیا جیسا تھا ویسا اترا، حسین نے جسے سوار کر کے بھیجا، ہر تھا ہر علیہ السلام ہو گیا، جون تھا جون علیہ السلام ہو گیا۔ بھئی جیسے کا جیسا تھا ویسا اترا، وہ نوح کا سفینہ تھا۔ حسین
जिसको भी उतारा सब अलैहिस्सलाम बन गए, आदम से लेकर जनाब ईसा तक, और उसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेकर 12वें इमाम तक हर नबी के हर इमाम के सहाबी गुजरे हैं। जाओ जितने उलमाए किराम आपको मिले, बड़े बड़े मुस्तहिदीन मिले, बड़े बड़े उलमा मिले, मैं कोई आलिम नहीं पढ़ा, आलिम नहीं पूछना, क्या किसी भी नबी के इमाम के सहाबी को अलैहिस्सलाम कहा जाता है? कहेगा नहीं। फिर कहा क्या जाता है? कहेगा या तो रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाता है, या रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, है ना, या रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। हम सलमान को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अबू ज़र को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, का यही है रिज़वानुल्लाह अलैह कहते हैं, रिज़वानुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह या रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चाहे मोहम्मद मुस्तफ़ा का सहाबी हो, अली मुर्तज़ा का सहाबी हो, हसन मुस्तफ़ा का सहाबी हो, ज़ैनुल आबिदीन का सहाबी हो, मोहम्मद बाकर का सहाबी हो, जाफर सादिक का सहाबी हो, जनाब ईसा के हवारीन हो, जनाब मूसा के हवारीन हो, कोई भी हो, सब रहमतुल्लाह कहलाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हुसैन के सहाबी ऐसे हैं 72 जो करबला में शहीद हुए, सब अलैहिस्सलाम कहलाते हैं। अब कुरान खोलो, कुरान में आदम से लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा तक सबको अल्लाह ने अलैहिस्सलाम कहा है। यानी अलैहिस्सलाम बनाना या अल्लाह बनाता है अलैहिस्सलाम, या हुसैन बनाता है। मोहम्मद वाले अल्लाह बनाता है अलैहिस्सलाम, या हुसैन को ये पावर है। वहनू ने जिसे इस्तेमाल किया था वैसे को उतारा, या हुसैन ने जितने को सवार किया था जब उतरे तो अलैहिस्सलाम बन गए। एक और फर्क बताऊं, जनाब नूह ने 6 महीने के लिए सवार किया था। 6 महीने के बाद जब जूदी पहाड़ थे, जनाब नूह का सफीना टकराया, और जब परिंदों को भेजा उसकी मिनकार में जो है जैतून का पत्ता था, तो का मुबारक हो, खुशकी नसीब हो गई, और में जमीन मिल गई, वहां जाना है। 6 महीने तक उस पर जनाब नूह की कश्ती पर लोग तैरते रहे। 6 महीने बाद जमीन पर उतरे, सवार किया सफीने पे, उतारा, बहुत तो जो बहुत आखिर जुड़ा, सवार किया सफीने पे, उतारा इसी जमीन पे, इसी जमीन से सवार किया था, इसी जमीन पे उतारा। ये जनाब नूह जैसे उलुल पहले पैगंबर, साहिब शरीयत, साहिब मौजदा, उलिल अज़्म रसूल का ये काम था, ये मौजदा था कि जिन्हें निजात देनी थी, सवार किया तो इसी जमीन से, उतारा तो इसी जमीन पे। मगर करीब करबला फखरे नूह का ये मौजदा है, सवार करता है इस जमीन पे, फर्श अज़ा पे, उतारता जन्नत में है। ये है मौला हुसैन का फर्श अज़ा। इमाम रज़ा जब इस फर्श पर आते थे, पंजों के बल चलते थे। उनका मौला आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? कहा जो मेरी निगाहें देख रही हैं तुम्हारी निगाहें नहीं देख रही। अल्लाह की मलाइका फौज दर फौज इस फर्श अज़ा पर आए हुए हैं, हुसैन का जिक्र करने। कौन कह रहा है? हमारे 8वें सरकार, 8वें इमाम कह रहे हैं कि फरिश्ते इस फर्श पर आए हुए हैं जिक्र हुसैन सुनने के लिए। आप मुझे किसी भी किताब से, किसी भी मुफ्ती से, किसी भी मौलवी से ये साबित करके बताओ कि कभी नमाज हो रही हो, फरिश्ते आते हो नमाजी का साथ देने के लिए, रोज़ा रखे हो, फरिश्ते आते हो रोज़ेदार का साथ देने के लिए, कोई आदमी हज के लिए जा रहा हो, फरिश्ता चलता है उसके साथ देने के लिए। 2 ही मंजिल मिलती है, या तो करबला जाए या फर्श अज़ा पर आ जाए। जाता है तो वहां भी फरिश्ता साथ जाता है, यहाँ भी फरिश्ता साथ सुनता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। और जैसे ही फर्श अज़ा बिछता है, इनसे पहले पसलियों पर हाथ रखकर हमारी मालिका, हमारी शहजादी इस फर्श अज़ा पर आ जाती है। जहाँ कहीं भी मजलिस हो, मिस्र का एक रहने वाला था, बड़ा ताजिर था, मालदार था, दौलतमंद था। हर साल बड़ी धूमधाम से जो है मुहर्रम का चाँद होते ही 10 दिन के लिए फर्श अज़ा बिछा दिया करता था, मजलिसें करता था। एक साल ऐसा हुआ पूरा माल उसका लूट गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा उसके घर में। छत के ऊपर उसकी बीबी और वो दोनों थे,
मुहर्रम का चाँद नजर आया। जब मुहर्रम का चाँद देखता है तो रोकर कहता है, मौला हर साल मैं आपके लिए तबर्रुक का मोमिन के लिए इंतजाम करता था, फरशेदा बिछाता था, 10 दिन तक आपका तस्करा करता था, मगर इस साल मेरे पास कुछ नहीं है जिसकी बिना पर मैं मोमिन को जाकर दावत दूंगा। आओ आज से हमारे घर फरशेदा बिछ गया है, मजलिस कैसे बुलाऊं मैं? उसकी बीवी बोली कि क्यों नहीं देते हो, ऐसी बात का तो कुछ नहीं है, अभी हमारे पास एक चीज़ है, नायाब चीज़ है, वो चीज़ चलो मैं तुम्हें देती हूँ। मैंने सोचा कि हो सकता है औरतों का काम होता है कोई चीज़ छिपा कर रखने का, कोई मालदार चीज़ हो छिपा कर रखी हो, ये दे दी मुझे। जब अंदर गई, हुजरे में लेकर गई, तो उसके छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। क्या ये दोनों नायाब हीरे हैं, नायाब चीज़ हमारी है, इसे ले जाओ बाजार में बेच दो, जो पैसे मिले उससे जो है कल फरशेदा बेचो। ये लेकर गया बाजार में बेचने के लिए, मिस्र के बाजार में जहाँ यूसुफ के मिलके थे वहाँ बेचने के लिए गया। दिन भर बैठा रहा, कोई खरीदार नहीं है। गुलाम बच्चे खरीदोगे, गुलाम बच्चे खरीदोगे बोलता रहा, मगर कोई नहीं आया। जब शाम हो गई तो देखा एक सवार आया और आने के बाद कहा, क्या बच्चे बेचना चाहते हो? कहा हाँ। कहा ठीक है, कितने का बेचोगे? कहा जितने का ले लो, मुझे मेरे मौला हुसैन का फर्ज पूछा, जितने का चाहे ले लो। एक थैली जो है दिनार से, कहा इसे ले लो, बच्चों को जो है घोड़े पर सवार कर दो। कहा मैं बेच रहा हूँ, मैं क्यों सवार करूँ, आप लेकर जाएं। तो घोड़े सवार ने कहा कि नहीं, ऐसा है मैं खुद लेकर जाता, मेरे हाथ नहीं है कि मैं बच्चों को उठाकर घोड़े के ऊपर सवार करूँ, तुम खुद सवार कर दो। ये बच्चों को सवार करता है, वो थैली लेकर घर पे आता है और जाकर मोमिन में ऐलान कर देता है, कल से हमारे घर जो है जहरा के लाल का मातम होगा, फरशेदा बिछेगा, मजलिसें होगी। असादारो इधर जाकर जो है ऐलान कर देता है। आधी रात गुजरने के बाद दरवाजे पर धक्कलवार होता है, जैसे दरवाजा खोला एक काले बुर्के में बीबी दरवाजे पर खड़ी हुई थी और दोनों बच्चे जो है उनके साथ बीबी की उंगलियां पकड़े हुए थे। एक मर्द इसने हाथों को जोड़ा जोड़कर कहता है, ऐ मालिका मुझसे क्या गलती हो गई, इन बच्चों से क्या गलती हो गई जो इन्हें वापस लेकर आई हो, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनसे कोई गलती हो जाए माफ कर देना, मैंने बेच दिया, लेकर जाओ। एक मर्तबा उस औरत ने, उस मुअज्जमा ने, बरके वाली बीबी ने तस्बीहों पर हाथ रखे रखे कहा कि मैं तुम्हें बच्चे लेने नहीं, मैं शिकायत करने नहीं आई हूँ, तुझे बच्चे वापस करने आई हूँ। कहा क्यों? कहा बच्चों को ले ले, हम बच्चे खरीदा नहीं करते, बच्चे भी ले ले, और जो माल दिया है उस माल से मेरे लाल हुसैन का फर्श आज़ा बिछाना, मैं रोज आऊंगी अपने लाल का मातम करने। एक मरतबा ज़मीन पर गिरा, गिर कर कहता शहजादी मेरी ये किस्मत, आप मेरे दरवाजे पर मेरे बच्चे को लेकर आई हो। एक मरतबा ज़हरा ने रोकर कहा, जिसने तेरे बच्चों को खरीदा था वो मेरी दुआओं वाला लाल हज़रत अब्बास था, मैं बच्चे लेकर आई हूँ, बच्चे भी रख, मगर करबला के बच्चों को याद कर, बच्चे रख, करबला के शहीदों को याद कर। एक मरतबा बच्चों को लेकर गया, बीबी ने कहा क्या हुआ, बच्चे को बेच दिया था, फिर वापस कैसे आ गए? रो कर कहता है जिन्हें बेचा था वो कायनात के सबसे बड़े जो है सबसे बड़े लोग हैं, कायनात में सबको अता करने वाले हैं, उन्होंने मुझे बच्चों को दोबारा अता कर दिया। हाँ सादारो, ओ ज़हरा कभी इस मुहर्रम के चाँद को देखा होगा, बाबा के सुनने के बाद यही मुहर्रम का चाँद होगा, हुसैन करबला में भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। कभी ज़ैनब ने चाँद को देखा होगा कि ये चाँद तो रहेगा, मेरे सर पे चादर नहीं रहेगी। कभी जो है कुलसूम ने देखा होगा ये चाँद होगा, यजीद का दरबार होगा। अरे एक एक बीवियाँ जब चाँद देखती होंगी तड़प जाती होंगी। इसीलिए मौला रजा जब मुहर्रम का चाँद देखते थे सर से अम्मा उतार देते थे, नंगे पाँव ज़मीन पर चलते थे। लोगों ने पूछा मौला मुहर्रम का इतना एहतमाम, कहा क्यों न करूं, मुहर्रम वो महीना है जहाँ करबला के मैदान में हम बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चों को भूखा प्यासा